بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، جو کہ ابتدا میں ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ چیزیں آپ لوگ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ عربی میں فعل تین طرح کا ہوتا ہے: ماضی، مضارع اور امر۔ ان میں ہر ایک سے پہلی فارم سے مختلف لفظ کیسے بنتے ہیں وہ بھی آپ نے سیکھے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز جو سامنے آ رہی تھی کہ بہت دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں کہ کوئی فعل کیا ہے۔ یعنی ہم کئی دفعہ ماضی کو امر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم ماضی کو مضارع کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ مضارع نہیں ہوتا۔ اور تو اس طرح کے جو مسائل ہیں کہ ہمیں فعل کی صحیح پہچان نہیں ہو پاتی، ہم ماضی کو مضارع کنسیڈر کر رہے ہیں، مضارع کو امر سمجھ رہے ہیں، یا امر کو ماضی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے لیے ہم نے ایک ایکسرسائز شروع کی تھی کہ افعال کے جو سٹرکچرز ہیں عربی میں، ہم نے لاسٹ ٹائم تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اسم بھی اور فعل بھی اپنے کچھ مخصوص اشکال پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ایسے گیون سٹرکچرز ہیں یا فارمز ہیں، وہ انہی کو فالو کرتا ہے، ان سے ہٹ کے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس افعال کے جو سٹرکچرز ہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھ لیں گے، تاکہ اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی لفظ کبھی پڑھتے ہیں کہیں، تو وہ لفظ دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے، وہ کون سا فعل ہے یا وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی، ہم نے دو تصورات تھے ان پہ گفتگو کی تھی۔ ایک ہے کہ وزن پہ، تو اس کو اگر کوئی ایکسپلین کرتے ہیں کہ وزن سے کیا مراد ہے جب ہم وزن کی اصطلاح بولتے ہیں صرف میں۔ جی جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کہ ہم وزن ہوتے ہیں، اور ہم ایک فعالہ ترکیب نکالنے کا طریقہ جس سے ہم کسی بھی لفظ کا وزن معلوم کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی بھی ورڈ ایکسٹرا ہے تو وہ اس کا زائد کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وزن جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی لفظ کا جو اصل اسٹرکچر ہے وہ ہے، اور اس میں جیسے آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آیا کہ آ، لفظ کوئی بھی جو ہوتا ہے اس میں حروف دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ حروف اس کے اصلی ہوتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، اور کچھ حروف کسی لفظ میں زائد ہوتے ہیں۔ تو جیسے ٹھیک ہے، اب اس میں جب ہم کسی لفظ کا اسٹرکچر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پاس کہ فلاں لفظ کا وزن یہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حروف اصلی جو ہیں ان کو فا عین لام سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور جو زائد حرف ہو اس کو ایز اٹ از لکھا جاتا ہے۔ یہی بات کی ابھی آپ نے، جی اور سر۔ اس میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے۔ جب ہم وزن کنسیڈر کرتے ہیں کسی بھی لفظ کا، یا کسی بھی لفظ کا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس کا اس کی حیت کیا ہے یا شکل کیا ہے، تو کن چیزوں کی طرف توجہ جانی چاہیے ہماری فوراً؟ سر اس کی حرکات پہ۔ ہاں جی، حرکات پہ، اور حرکات سے بھی پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے نا اس کہ کا روٹ ورڈ نہیں، وہ بھی بعد میں آئے گا۔ پہلی چیز جب آپ کسی لفظ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وہ لفظ کتنے حروف پہ ہے۔ جمع ہے، صحیح سے۔ ٹھیک ہے، مطلب تین حرف کا ہے، چار کا ہے، پانچ کا، چھ کا۔ اس سے چونکہ بہت ساری چیزیں ویسی اس سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک لفظ تین حرف کا ہے، تو روٹ ورڈ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عام طور پہ تین حرف کا ہوتا ہے۔ تو اگر میں ایک لفظ ڈسکس کر رہا ہوں جس میں حروف ہیں ہی تین، تو اس کا مطلب ہے اس میں جو تینوں حروف ہیں وہ روٹ کے ہی ہوں گے، زائد حرف تو اس میں ہوگا ہی نہیں نا، کیونکہ جی زائد حرف تب کسی لفظ میں آئے گا اگر میں کوئی بڑا لفظ دیکھ، چار حرف کا لفظ اگر ہے میرے سامنے تو اس میں ایک حرف زائد ہوگا، تین جو ہیں وہ تو اصلی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ سب سے پہلے تو یہی دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کے حروف کتنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ
दूसरी चीज वही देखते हैं कि उन हरूफ में हरकत किस तरह से लगी, यानी पहले हर्फ पे क्या हरकत है, या दूसरे हर्फ पे क्या है, उस पे सुकून है या वो दम्मा है या फतहा है या कसरा है या शद लगी हुई है। तो इस तरह से आप एक एक हर्फ को चेक करते हैं कि उसकी हरकत क्या है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, पहले हरूफ की तादाद और फिर हरकत की तरतीब। फिर आगे तीसरी बात है कि अब हम उनमें अगर वो लफ्ज बड़ा है, अगर तीन हर्फ से ज्यादा है, फिर हम इसमें ये गौर करेंगे कि कौन से हर्फ उसके असली रूट वर्ड उसका क्या है, कौन से हरूफ उसमें जायद। अगर तो तीन हर्फ का ही लफ्ज है तो फिर अंडरस्टूड है कि वो तीनों हर्फ उसके असली है, जायद हर्फ उसमें कोई भी नहीं है। लेकिन बड़ा लफ्ज है अगर हमारे सामने, फिर हम उसमें आ, सबसे पहले ये सेग्रीगेशन करेंगे, हरूफ असली क्या है, हरूफ जायद क्या है। इसका तरीका क्या होता है, जैसे अगर मेरे सामने कुछ लफ्ज हो और वो यानी बड़ा लफ्ज है ऑब्वियसली, तो उसमें मुझे अगर देखना है कि हरूफ जायद क्या है और असली हरूफ क्या है, तो उसका पहचान क्या है, इस पे भी हमने बात की थी। कैसे पता चलेगा आपको किसी लफ्ज का रूट लेटर और जायद? सर जो तीन सर हर्फों के में बाद दूसरा हो। आ, जी जी, पहले कौन बात कर रहा था, कोई अगर कर लें आप तो। सर उसमें अलीफ का मतलब कि गौर करेंगे, जायद मतलब कि जैसे औलाद में अलीफ फर्स्ट वाला और लाम के ऊपर जो अलीफ है वो वाला। अलिफ पे गौर करेंगे। ये अलिफ वाले केसेस में तो बात ठीक है, लेकिन अलिफ हमेशा नहीं होता ना ज्यादातर, और भी हो सकते हैं। कोई जनरल बात बताए ना जो हर जगह अप्लाई हो सके। कलमे में हम फे एन और लाम की जगह जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको चेक करेंगे तो वो वाले हर्फ जो होंगे वो रूट वर्ड्स होंगे और बाकी जो है वो मजीद मतलब ज्यादा वाले होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब तो देखिए हमें कोई भी हम अगर किताब पढ़ते हैं जैसे सर्फ की, तो उसमें वजन रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। हमें पता होता है ना कि उसमें हर लफ्ज के वजन गिवन होता है, इसम का भी फेल का भी। तो अब जैसे फाइल है, या मिसाल के तौर पे ये फ़ईल एक वजन है, तो किसी वजन में जो फाइल लाम होता है वो फिर असली है, जो उनके अलावा हर्फ है, जैसे फ़ईल में या एक्स्ट्रा आ रहा है, फाइल में अलिफ है, तो वो एक्स्ट्रा होगा, जो भी फाइल लाम के अलावा है वो जायद हरूफ है। ये तो है अगर आपको पहले से किसी लफ्ज का वजन पता हो। अगर आपको वजन पता ही नहीं है, आपने नहीं पढ़ रखा पहले से, जैसे अभी हम बिल्कुल आगाज में पढ़ रहे हैं, शुरू में क्या तरीका, यानी कैसे हम जान सकते हैं अगर मुझे पता ही नहीं है फाइन लाम की सूरत में भी किसी लफ्ज का वजन, तो फिर मैं कोई और तरीका भी है? सर तो हमें पता होना चाहिए कि ज्यादातर मजीद जो इजाफी वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे या हो गया, अलिफ हो गया, वाव हो गया। ठीक है। एक बात तो ये हो गई जी, अच्छा ये कि इससे भी हम देख सकते हैं कि आमतौर पे जायद हरूफ जैसे अलिफ वाओ या है, इनकी तरफ नजर करें, ठीक है। और मतलब नहीं आ रहा जहन में किसी के भी? देखिए इसमें, नहीं सर। हाँ इसमें डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम कि अगर हमारे सर पास उसके वजन के और वर्ड्स हम देख लेंगे कि अगर हमारे मतलब जहन में या हमें कोई और उसी वजन के हाँ वर्ड नजर आते हाँ हैं, तो फिर हम बिल्कुल, उसमें से कर लेंगे कि इन दो या तीन वर्ड्स में ये एक्स्ट्रा आ रहा है या ये हाँ चीज कॉमन आ रही है। बिल्कुल। ये आसान तरीका है कि अगर कोई लफ्ज आपके सामने, आप कोशिश करें उसका हम वजन लफ्ज तलाश करें, अपने जहन में रिकॉल करें। अगर दो या तीन लफ्ज भी आपको मिलते जो हम वजन है, जैसे ये आपके सामने मुख्तलिफ लफ्ज लिखे हुए हैं, औलाद, अक़वाल, अफ़ाल, ये सारे हम वजन है ना। या जैसे ये नीचे कुछ लफ्ज के मैंने आलिम, जाहिल, जालिम, एक ही तरह वजन है इनका। तो हम वजन अल्फाज में फिर आप गौर करते हैं कि कौन सा हर्फ कॉमन है, जो हर्फ उन सब लफ्जों में होगा वो जायद हो। जैसे आलिम, जाहिल वगैरह के केस में अलिफ जायद हर्फ है, ये कॉमन है ना, क्योंकि इन सारे लफ्जों में। इसी तरह ये वाले जो हम वजन अल्फाज हैं, इनमें जो शुरू का अलिफ है और सेकंड लास्ट का अलिफ वो कॉमन है, तो ये दो हर्फ जायद है। ठीक है, तो हम वजन अल्फाज में जो हर्फ कॉमन होता है या जो सब में रिपीट हो रहा होता है वो हर्फ जायद। ठीक है जी, क्लियर है?
جی سر کلیئر ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، اب آگے چلیں. نہیں ہے؟ صحیح. چلے مادہ کیا ہے، اس میں بھی ہماری بات ہو گئی تھی کہ اصل حروف کچھ جس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں اور ان سب میں وہ والا معنی کیری کرتے ہیں، ایک ہی فیملی کے جو مختلف الفاظ اصل میں جس لفظ سے بنے ہوتے ہیں، جو اس کا سب سے بیس ورڈ ہے وہ مادہ کہلاتا ہے. اور مادہ عام طور پہ کتنے حرف کا ہوتا ہے عربی میں، یہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، یہ 3 حرف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وزن بھی ہم پڑھ چکے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں پھر. ہاں، اب جو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ پہلی چیز جب ہم کسی لفظ کو دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو آپ کو کنسیڈر کرنی ہے یا جس پہ آپ کی نظر جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لفظ کتنے حرف کا ہے. تو اس لیے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اور فعل جو ہیں وہ کتنے حرف کے ہو سکتے ہیں. تو کم از کم جو فعل ہوگا یا اسم ہوگا وہ 3 حرف کا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم پہلے فعل کی بات کر لیں تو فعل منیمم 3 حرف کا ہی ہوگا اور میکسیمم 6 حرف کا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے فعل اب 4 طرح کا ہو گیا نا، 3 حرف والا، 4 حرف والا، 5 حرف والا، 6 حرف والا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے وزن ہیں اور ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے کہ 3 حرفی فعل کے وزن کیا ہیں، 4 حرفی کے، 5 حرفی کے اور 6 حرفی کے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی طرح اس کو اپنے ذہن میں جیسے رکھنا ہے. پہلے ہم 3 حرف والوں کے اوزان ڈسکس کریں، پھر 4 حرفی کے، پھر 5 حرفی کے اور دین 6 حرفی کے. ٹھیک ہے. تو فعل کم سے کم 3 حرف کا، زیادہ سے زیادہ 6 حرف کا ہوتا ہے. اسم بھی منیمم 3 حرف کا ہوگا اور سب سے زیادہ جو میکسیمم ہو سکتا ہے اسم 7 حرف کا ہو سکتا ہے. تو اب جو 7 حرف والا ہوگا اس میں 4 حرف زائد ہوں گے کیونکہ حروف اصلی 3 ہی آ رہے ہوتے ہیں. اور حرف جو ہوتا ہے وہ منیمم 2 حرف کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس میں 5 حرف ہو سکتے ہیں. کلیئر ہے جی یہ بات؟ تو اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے فعل کا وزن پڑھیں گے اور اسی طرح سے پہلے 3 حرفی فعل، پھر 4، پھر 5 اور 6 کو ڈسکس کریں گے. آگے یہ کانسیپٹ ہے حروف اصلی اور زائد کا. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کسی لفظ میں جو مادے کے حروف ہیں ان کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں، مادے کے علاوہ جو حرف ہوتے ہیں وہ حروف زائد کہلاتے ہیں. مادہ جاننے کا کیا طریقہ یہ بھی ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہی جو ہم وزن الفاظ ہیں ان میں اگر آپ کامن حرف تلاش کریں گے تو وہ زائد ہوگا، باقی حروف جو بچ جائیں گے وہ مادہ ہوگا. وہی بات چل رہی ہے. آگے کچھ ایگزامپلز ہیں اس میں نوٹس میں، وہ پڑھ لیجئے گا. ہاں، ایک بات، اب جیسے آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ الف کو دیکھتے ہیں زیادہ تر، یا الف واو یا کو دیکھتے ہیں کہ یہ عام طور پہ زائد ہوتا ہے. تو جو زائد حروف ہوتے ہیں وہ یہ 10 ہو سکتے ہیں، ان 10 میں سے کوئی حرف زائد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ جیسے عربی میں ٹوٹل 28 حرف ہے، تو یا اگر ہم الف اور حمزہ کو دو کنسیڈر کریں تو 29 حرف ہے. تو 29 میں سے 10 حرف ہیں جو زائد ہو سکتے ہیں، باقی 19 حرف تو جب بھی کسی لفظ میں آتے ہیں وہ مادے کے ہی حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جیسے یہ چیز بھی آپ کو مدد دے سکتی ہے کہ یہ 10 حرف ہمیں پتا ہوں، سألتمونیہا. اور ان میں اگر ہم بات کریں تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، سب سے کامنلی یعنی جو حرف سب سے زیادہ آتے ہیں وہ الف ہے، واو ہے، یا ہے. چوتھے نمبر پہ حمزہ ہوگا، 5ویں نمبر پہ تا ہے، اور پھر جا کے میم ہے. میم کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں نون اور یا ہا اور سی. نون یا ہا سی یہ چاروں بہت کم وزنوں میں استعمال، یعنی وہ گنے چنے کچھ وزن ہیں جن میں یہ حروف زائد ہے. زیادہ تر جو حروف آپ کو زائد ملیں گے وہ یہی الف، واو، یا، حمزہ، تا. یہ 5 حرف سب سے زیادہ ہوتے ہیں زائد. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی لفظ ایسا پڑھ رہے ہیں جس میں ان میں کوئی حرف نہیں آ رہا، زائد حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، تو ویسے ہی اس کا مادہ تو فوراً پتہ چل جائے گا نا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، جیسے یہ لفظ ہے کاشف. اب ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، فرض کریں ہم اس کا ہم وزن لفظ بھی نہیں پتا کوئی، تو کاشف میں اب 4 حرف ہیں اور اس میں اب کاف جو ہے وہ زائد حرف ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم پروبیبلٹی ہر حرف کی دیکھیں
تو کاف تو زائد نہیں ہوتا کبھی بھی. شین جو کسی لفظ میں آتا ہے وہ بھی کبھی بھی زائد نہیں ہوتا, فا بھی زائد نہیں ہوتا. تو اس سے بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں صرف زائد حرف کون سا ہو سکتا ہے, الف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کاشف اس کا مطلب ہے کشف سے, کیونکہ کشف میں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے نا جو زائد حرف میں آپ کو دکھ رہا ہو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. باقی حروف اصلی کو لکھتے کیسے ہیں وزن میں, وہ ڈسکس لاسٹ ٹائم بھی کر چکے ہیں کہ فائن لام کی صورت میں کسی بھی لفظ کا وزن بتاتے ہیں. بس اب آگے چلتے ہیں سیدھے. یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. یس سر کلیئر ہے. چلے اچھی بات ہے. اب ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آتے ہیں, چونکہ اب تک جتنی باتیں کی تھیں وہ سب تمہیدی باتیں بیسیکلی, اس چیز کو سمجھانے کے لیے. اب جو اصل مسئلہ ہے ہمارا وہ یہی ہے نا کہ ہم نے فعل کو صحیح سے پہچاننا ہے, تو اس کے لیے ہمیں فعل کے وزن پڑھنے. تو ہم انشاءاللہ فعل کے جب وزن سب پڑھ چکے ہوں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی لفظ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے یا نہیں ہے, اور اگر فعل ہے تو کون سے والا فعل ہے. فعل میں شروع میں جو دو اصطلاحات ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں جب ہم وزن کو ڈسکس کرتے ہیں. تو فعل ایک ہوتا ہے جسے مجرد کہتے ہیں, اور ایک فعل ہوتا ہے جسے ہم مزید فی کہتے ہیں. اس کانسیپٹ کو کوئی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, مجرد کیا ہے اور مزید کیا ہے؟ سر مجرد جس میں صرف فا عین اور لام اس کے مادہ میں ہو اور ایکسٹرا کوئی زائد نہ ہو, وہ بالکل صحیح. مجرد ہو. تین سے مل کے جو بنا ہے, تین ورڈ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. تو مجرد سے مراد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں تمام حروف اصلی ہوں, سب حروف مادے کے ہوں, مادے کے علاوہ کوئی حرف نہ ہو. اور یہ وہی بات کہ یہ تین حرف کا ہی ہوگا, جیسے ذہب ہے, دخل, کتب, شریب, سمع. اس میں تینوں حروف مادے کے ہیں نا, ایکسٹرا حرف تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے الفاظ کو مجرد کہتے ہیں. مجرد کا مطلب ہوتا ہے یعنی خالص, جس میں صرف اور صرف مادے کے الفاظ ہیں. اور مزید کا مطلب کیا ہوگا, جس میں کوئی زائد حرف, یعنی جس میں مادے کے حروف پہ مزید کچھ اور حرف کی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہم لفظ کو جس میں ایکسٹرا حرف ہوں ان کو مزید کی کہتے ہیں, جس میں صرف مادے کے حرف ہوں اس کو ہم مجرد کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اب ہم پہلے پڑھیں گے تین حرفی فعل, اس کا اسٹرکچر ڈسکس کریں گے, اور پھر اس کے بعد آگے چل کے انشاءاللہ چار حرفی اور پانچ حرفی کو دیکھیں. اب تین حرفی فعل جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ثلاثی مجرد, یہ اس کا نام ہے. ثلاثی کا مطلب ہے یعنی وہ لفظ جس کا مادہ تین حرف کا ہے, اور مجرد ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو. تو اب ہم بیسیکلی ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں, یعنی تین حرف والا فعل. تین حرف کا جو فعل ہوتا ہے اگر ہم اس کا ماضی ڈسکس کریں تو ماضی اس کے تین وزن ہوتے ہیں ماضی کے. ایک ہے فعل, دوسرا وزن ہے فعیلا, اور تیسرا وزن ہے فعولا. ٹھیک ہے, یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں. جیسے دیکھیے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا کہ یہ کچھ فعل ہیں جیسے ذہب, اکل, نصر, فتح, یہ سب ان کا وزن کیا ہے, فعلا. اسی طرح سمع, عمیلا, شریبا, یہ سب فعیلا کے وزن پہ ہیں. تو دو وزن تو یہی ہو گئے, فعلا اور فعیلا. اور ایک تیسرا وزن بھی ہوتا ہے, وہ ہے فعولا. فعلا, پھر فعیلا اور فعولا. یہ تین وزن ہیں ماضی کے ثلاثی مجرد میں. اور تینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے کہ جو عین کلمہ ہے, یعنی جو مادے کا دوسرا ہے, تو اس کی حرکت ڈفرینٹ ہے. فعلا میں اس پہ فتحہ ہے, فعیلا میں کسرہ ہے, فعولا میں ضمہ ہے. ٹھیک ہے, تو ماضی اس کا مطلب ہے تین حرفی فعل کا ان تینوں میں سے کسی بھی صورت پہ آ سکتا ہے, زبر کے ساتھ بھی, زیر کے ساتھ بھی, پیش کے ساتھ بھی. پیش کی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں جیسے ایک فعل یوز ہم کرتے ہیں کبورا, یا اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کروما یا حسونا. تو یہ فعولہ کے وزن پہ یہ فعل آ رہے ہیں. اس کا اب ایک فوری فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فعل کوئی سا بھی اگر ہوگا تین حرفی تو وہ اس کا جو پیٹرن ہے وہ یہی آئے گا. تو آپ اس کے اگر دیکھیں گے تو پہلے اور تیسرے حرف میں ہمیشہ زبر ہوگا, اور جو
मिडिल लेटर है, उस पे जबर जेर या पेश तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर फ़ाला फ़ईला या फ़ाउला से हट के कोई वजन है जिसपे कोई लफ्ज आ रहा है तो वो फिर फेल नहीं है। जैसे ऊपर ही आप देख रहे हैं ना, हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स ली थी, जैसे ये लफ्ज हैं जो फ़ौल के वजन पे आ रहे हैं, या ये अल्फाज हैं जो फ़िल के वजन पे, या ये लफ्ज है फ़अल के वजन पे। अब ये अल्फाज फेल नहीं है ना, क्योंकि ये उस वजन को तो फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, ये इसम है फिर। क्लियर है ये बात? तो हाँ, अगर इन्हीं को आप देखें, अगर फर्ज करें ये शुक्र और कुफ्र जो है, इन्हीं को अगर मैं यूं इस्तेमाल करूं, शकारा या कफारा, तो अब शकारा और कफारा ये इसका फेल होगा, लेकिन शुक्र और कुफ्र फेल नहीं है, वो इसमें। ठीक है। इसी तरह जैसे जिक्र, फिक्र या विरद है, ये भी इसमें, चूंकि फ़ाला फ़ईला या फ़ऊला के पैटर्न पे नहीं है ना, तो अगर लेकिन जकारा इस्तेमाल हो या वरदा इस्तेमाल हो तो वो फेल कंसिडर होगा। ठीक है जी। तो जो तीन हरफी फेल है सुलासी मुजरद, उसका माजी इन तीन में से किसी भी पैटर्न पे हो सकता है, फ़ाला फ़ईला या फ़ऊला। और अगर मुजारे डिस्कस करें तो वो भी तीन पैटर्न्स पे आ सकता है, यफ अलू, यफ इलू और यफ उलू। तो इसमें भी आइन जो है, यानी दूसरा हर्फ जो होता है मादे का, उसमें तीनों प्रोबेबिलिटीज है। जबर के साथ, जेर के साथ, पेश के साथ आ सकता है, बाकी एक ही तरह आ रहा है, यफ अलू, यफ इलू और यफ उलू। इसकी जरा कुछ मिसालें बताइएगा यफ अलू पे, जैसे कोई आपके जहन में फेल हो, यफ अलू के वजन पे जो। यकतुबु। नहीं, यक तुबू, यफ अलू पे तो नहीं है। यकतबु। यकतबू होता नहीं है लफ्ज, यकतुबू होता है। वो ठीक है, वो यकतुबू जो है वो कौन से वजन पे इन तीनों में से? यफउलु के वजन पे। यफउलू के वजन पे, ठीक है। सर यस्माउ यामलू। यस, यामलू। यस्माउ यस्माउ, बिल्कुल ठीक है, यस्माउ यफअलू के वजन पे, ठीक है। इसी तरह यफअलू। मलू। यालमू बताया है किसी ने, यालमू भी यफअलू पे, ठीक है। और सर यफ्तहू। यफ्तहू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये यफअलू की मिसाल है। और यफइलू पे अगर हम देखें तो, जी, ये आपने बताया यस्माउ यफ्तहू यालमू। जी, अब आगे बताइए कि यफइलू पे कोई एग्जांपल अगर किसी को मालूम यज़हिबु। है। यज, जी, यजलिमू, यज़ यज़हिबु। यजरिबू। अच्छा, ठीक है। यज़हिबु। यज, हीबु। यज़हिबु ये के नहीं, साथ। वो यजहबू, ज़हब यजहबू, वो यफअलू के वजन पे आएगा, यजहबू। यजहिबू नहीं है लफ्ज कोई। जी, और देखें। सर यगसिलू। यगसिलो, यस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका जरा यफउलू पे कोई बताइएगा कुछ अफाल। जैसे एक आपने बताया यकतुबू, अभी बताया था आपने, और यंसुरु। यंसुरु, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यजलिसु। यज, यकबुरु नहीं, यजलिसु यजलिसु। होता है, यजलुसु नहीं, वो यजलिसु यूज होता है, लाम की जेर से यजलिसु। वो यशरुबु। यफइलु पे है। यशरुबु भी नहीं होता, वो यशरबु होता है, यफअलु पे। यकबुरु सर जी, और एक मिसाल होते थे। यकबुरु यकरुमु युद्रुसु। यदरुसु, युद्रुसु या यदरुसु? सॉरी, यद्रुसु। यदरुसु, ठीक। ये यकफुरु यकरुमु वो सब मिसालें भी ठीक है, इसी पे आ रही है। अच्छा, ठीक है। चलें, ये तो क्लियर हो गया कि तीन हर्फ का जो फेल होगा माजी उसका फाला
फ़ाइला या फ़ाउला के वजन पे होगा, और मुजारे के भी उसके तीन वजन हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़अलु। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है कि अ, ये पता कैसे चलता है कि कोई भी अगर फेल है तो उसको मैंने किस वजन पे इस्तेमाल करना है? जैसे अभी ये आपने जब मिसालें बताई हैं तो इसी में मसला आ रहा था कि कई फेल आपने ऐसे बताए हैं ना कि ये लफ्ज ये है, मैंने आपको बताया कि नहीं ये लफ्ज यूं नहीं यूं है। तो ये पता कैसे चलता है कि किसी लफ्ज को किस वजन पे इस्तेमाल करना है? यानी यस्माऊ बोलना है या यस्मीऊ बोलना है या यस्मुऊ बोलना है? क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो तीनों ही है ना। तो ये तय कैसे होता है कि हम फेल कौन सी हरकत के साथ बोलेंगे? इसमें कोई उसूल है? सर लुगत लुगत में वो होता है हर वर्ड का, कि हर मादा का जो है वो उसके लिखे होते हैं कि इसका माजी क्या होगा और मुतारी क्या होगा, उससे देखते थे। लुगत का ये नहीं पता। लुगत से देख लेते हैं किसी भी लफ्ज का, अगर हमें देखना हो कि इसका वजन या तलफ़ुज़ क्या होगा अरबी में, तो लुगत देखेंगे। इसका मतलब है पीछे कोई उसूल नहीं है इसके, तो ऐसा। नहीं सर, हर का स्कूल होगा तो तभी पता चलेगा ना। अब हर एक लफ्ज के लिए लोग तो नहीं खोलेंगे हम लोग। हम्म। नहीं अब लेकिन अब यही मसला, मैं ये बात करना नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मायूसी होगी, लेकिन ये मसला तो है कि इस केस में जो तीन हर्फ का फेल होता है उसमें वो कस्बरा की बात ठीक है, उसमें आपको लुगत खोलनी पड़ती है हर फेल के लिए। तीन हर्फ का जो फेल होता है छोटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो बड़ा फेल है ना, चार हर्फ वाला, पांच वाला, छह वाला, उसमें एक सेट पैटर्न है, वो आपको एक दफा आपने सीख लिया, आप हर लफ्ज यानी जो नया लफ्ज आएगा ना आप खुद बना सकते हैं उसके मुख्तलिफ अल्फाज। तीन हरफी फेल में इससे फर्क यानी नहीं पड़ता कि आपको वजन पता है या नहीं पता, इवेंचुअली आपको याद ही करना होता है। क्योंकि अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये लफ्ज यज़हिबू नहीं है, यज़हबू है, तो इसमें अगर आप पूछेंगे कि भाई क्यों, तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिस इसकी है, ये तो बोला इस तरह जाता है कि पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि किसी लफ्ज को जबर से बोल रहे हैं, कहीं जेर से बोल रहे हैं, कहीं पेश से बोल रहे हैं। ये जस्ट तलफ़ुज़ का फर्क है। तो जैसे हम उर्दू में मुख्तलिफ लफ्जों का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ रखते हैं ना, किसी लफ्ज को कभी कोई लफ्ज होता है जो हम पेश से शुरू कर रहे होते हैं, किसी पे जबर बोल रहे हैं, कहीं शुरू में जेर बोल रहे हैं। तो भाई नया आदमी उर्दू सीखेगा तो वो आपसे ये अगर पूछेगा भी कि भाई इस लफ्ज को तुम, मिसाल के तौर पे वो अगर कहे कि मुड़ना क्यों बोलते हो, जो मुड़ना क्यों बोला जाता है, मरना क्यों नहीं बोलते, तो इसका जवाब तो नहीं है ना हमारे पास कोई, सिवाय इसके कि भाई मुड़ना ही होता है, मरना या मिड़ना नहीं होता। तो वो तलफ़ुज़, ये ऐसी चीजें हैं जिसका सिर्फ तलफ़ुज़ से फर्क से ताल्लुक है ना। तो वो तो आप सीखते हैं अहले ज़बान से, जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं आप वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। तो ये इसलिए आपको लुगत ही देखनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है फतवारा कि इसमें कोई उसूल नहीं है। यानी और इसमें रट्टा लगाना पड़ेगा हमको। हाँ इसमें रटा, और लेकिन रटा भी यानी उस तरह नहीं कि लिस्टें ले ले और याद कर ले, ये नेचुरल है कि आप जब एक जबान के साथ टाइम आपके ज्यादा गुजरता है तो गुजरते गुजरते वो आपको चीजें याद होने लगती हैं। मतलब आप एक लफ्ज बार बार पढ़ रहे हैं, बार, अब जैसे ज़हाबा यज़हबू है, आप कितनी दफा जब पढ़ चुके होंगे तो आपको, आपके लिए भी ये नेचुरल हो जाएगा। जैसे पहले जबान के लिए वो चीज वो उससे सोचते नहीं है ना, वो नेचुरली उनसे अदा ही वो लफ्ज इस तरह होता है, वो उनके लिए ये सवाल ही मतलब फजूल सवाल है कि कोई अगर यूं जैसे हमसे अभी जैसे जो मैंने बात की थी कि कोई अगर ये पूछे कि भाई ये लफ्ज मिलना क्यों नहीं है, तो हमारे जहन में कभी ये सवाल आया है? आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है हमारे लिए ये सवाल। हमारे लिए ये लफ्ज नेचुरली है ही मोड़ना। तो अहले जबान के लिए जिस तरह वो एक लफ्ज वैसा ही उन्हें दिख रहा होता है कि यही इस है, तो हम भी जब एक जबान में ज्यादा वक्त लगाते तो कुछ अरसे बाद आपके लिए भी वो वैसा ही होता है कि आपके जहन में कोई डाउट नहीं होता है कि ये लफ्ज यूं होना चाहिए यूं। वो पढ़ पढ़ के सुन सुन के आपको आइडिया होता है कि ये लफ्ज ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन शुरू में ठीक है कि शुरू में आपको इसमें लुगत देखनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी लफ्ज का ये जानने के लिए कि उसमें एग्जैक्ट इन तीनों में से वो किस वजन पे आएगा।
अच्छा, बस इस बात को मैं तीन हरफी में मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा टाइम ना लगाए, क्योंकि इसको वैसे ही याद ही करना ना, तो टाइम लगाने का फायदा फिर क्या है। लेकिन बस एक चीज मैं इसमें करके फिर मुकम्मल, मतलब चारों की तरफ अगली बात पे चले, चार हरफी फेल पे। वो ये कि इसमें आपने एक चीज और भी नोट की होगी, जैसे मिसाल के तौर पे यही लफ्ज अगर जो लिखे हुए हैं, हम इन्हीं को अगर एज एन एग्जाम्पल लें, तो यकतुबु का मुझे बताइएगा कि माजी क्या होता है, किसी को अगर कातबा। पता है। कतबा होता है। काताबा। ठीक है, इसका माजी है कतबा। अच्छा, यंसुरु का नसरा। नसरा। नसा नासारा। नसारा। ठीक है, यदरुसु दरसा। 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 अच्छा, आपने कुछ अफाल लेकिन और बताए थे, अभी कुछ लोगों ने आप में से बताए थे यकफुरु। अगर यकफुरु हो फर्ज करें, तो इसका माजी क्या होता है? कबरा। कबरा। नहीं, कबूरा। कब? यस, हाँ, इसका डिफरेंट है, कबूरा। ठीक है। कबूरा। अच्छा चले, यजलिमु का बताएं, इसका माजी क्या होता यगसिल। है? नहीं, ऊपर यजलिमु, ज़लमा। यजलिम ज़लमा, यस। सलाम। और इसमें आगे जो है यजरिबु, इसका भी जरबा है। यगसिलु जरा। जो है इसमें भी गसला है, इसी तरह है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बताइएगा जरा, यस्माउ, इसका माजी क्या है? समिया। समा। समिया। समिया। समीआ। ठीक है। और यफ्तहु का माजी? फतहा। 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 और यालमू का? अलामा। नहीं, अलामा नहीं। अलीम। अलीमा, ये समिया की तरह है। अब आप देखें, इससे एक चीज और समझ आती है कि किसी तीन हरफी फेल की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि माजी का वजन और हो, मुजारे का और हो। यानी माजी में मुमकिन है कि उसका जो सेकंड लेटर है, ये जो आइन कलेमा है, उस पे फतहा आ रही है, लेकिन मुजारे में फतहा नहीं है। फतहा जम्मा कसरा से तो आप लोग वाकिफ है ना इजीली। फतहा हम जबर को कह रहे होते हैं, कसरा जेर को, और जम्मा पेश को। तो इसमें हम जैसे आप देख रहे हैं कि समिया में माजी में जेर आ रहा है मीम पे, मुजारे में जबर आ रहा है। ठीक है। अलीमा भी ऐसा ही है कि माजी में जेर है आइन पे, और मुजारे में जबर है। लेकिन फतह के केस में ऐसा नहीं है। फतह में माजी में जो हरकत थी, माजी में जबर था, मुजारे में भी वही चल रहा है। ठीक है। यहाँ अगर हम देखें ज़लम यज़लिमु, तो इसमें भी माजी में जो इसका सेकंड लास्ट है उस पे जबर है, मुजारे में जेर है। इधर भी माजी में सेकंड लास्ट पे जबर है, मुजारे में पेश है। तो यहाँ माजी पे भी पेश है, मुजारे में पेश है। इसका मतलब है कि इन अफाल की आपस में जब ग्रुपिंग होती है माजी मुजारे की, तो वो भी किसी भी तरह से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी फेल के माजी में जेर आ रहा है सेकंड लास्ट पे, तो मुजारे में भी जेर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना ये बात? ये आपके सामने ही है इन अफाल में, कि ये किसी भी तरह इनकी ग्रुपिंग हो सकती है। सही है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर माजी फ़अला है तो मुजारे यफ़अलु हो, या माजी फ़ईला है तो मुजारे यफ़इलु हो, और फ़ऊला का मुजारे यफ़उलु हो। इनके आपस में मुख्तलिफ पैटर्न्स बन सकते हैं। फ़अला का मुजारे यफ़अलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़उलु भी हो सकता है। ठीक है। तो अब क्लियर है, मतलब दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक ये कि जो सुलासी मुजर्रद होता है तीन हर्फ का फेल, उसके माजी के भी तीन वजन है, फ़अला फ़ईला फ़उला। मुजारे के भी तीन वजन है, यफ़अलु यफ़इलु और यफ़उलु। और दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की है कि इसमें इसका कोई उसूल नहीं है कि किसी फेल को किस वजन पे यूज किया जाएगा। ये आप इस्तेमाल से सीखते हैं, और मतलब आप इसको जैसे याद करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये तलफ़ुज़ है बेसिकली, तो इसके पीछे कोई उसूल नहीं है। और तीसरी चीज जो अभी हम देख रहे थे वो ये है कि माजी और मुजारे का जब कम्बिनेशन बनता है किसी फेल में, तो कई तरह से बन सकता है। यानी हो सकता है कि माजी के वजन में आइन कलेमा पे फतहा हो, मुजारे में कसरा हो। तो इनमें एक ही तरह का हरकत होना जरूरी नहीं है अफाल में। क्लियर है ये तीनों बातें?
यस सर। सर एक सवाल है मेरे ذहन जी। में, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब सेम हरूफ असली हो लेकिन वो इनमें से किसी भी दो वजन पे आ रही हो? जैसे अगर कोई एक वर्ड है वो फाला के वजन पे भी आ रहा है और फाइला के वजन पे भी आ रहा है, क्या ऐसा हाँ, यूज है कि नहीं है? ऐसी मिसालें हैं, कुछ ऐसे कुछ अफ़ाल हैं और जो एक से ज्यादा वजन को पे आ रहे होते हैं। और उसमें नॉर्मली फिर ये भी होता है, यानी कुछ तो ऐसे फेल हैं कि उनमें सिर्फ तलफ़ुज़ का जैसे फर्क है कि दो तरह से उसको बोला जा रहा है, मानी में फर्क। लेकिन इस तरह की जो अक्सर मिसालें हैं कि जहाँ वजन एक से ज्यादा है, वहाँ मानी भी पे डिफरेंट होते हैं। यानी मानी मिलते जुलते तो होते हैं लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक फेल है हजीना, माजी हजीना है। चले मैं सिर्फ माजी को ही लेता हूँ। तो हजीना का मतलब होता है गमगीन होना, दुखी होना। ठीक है, ये लफ्ज जबर के साथ भी इस्तेमाल होता है, हजाना। वहाँ इसके मानी डिफरेंट है इस सेंस में कि वहाँ हजाना का मतलब दुखी होना नहीं है, किसी और को दुखी करना है। उसका मतलब दूसरे को गम देना है, दुख देना। ठीक है, तो है तो दोनों हुज्न से मुतल्लिक ही, दोनों ही में गम है। लेकिन फर्क ये है कि अगर हजीना बोलते हैं तो वो जैसे उसमें पैसिविटी है कि खुद एक आदमी गमगीन हो रहा है। और जब हजाना बोलते हैं तो वो एक्टिव है कि उसमें दूसरे को वो गमगीन करता है। तो इस तरह से नॉर्मली ये होता है कि जब एक ही अगर फेल है और वो दो वजनों से आ रहा है, तो आमतौर पे उनमें मानी भी दो। लेकिन इस तरह की एग्जांपल्स भी पाई जाती है कि जहाँ एक फेल दो वजनों पे आता है या ज्यादा वजनों पे, लेकिन मानी में भी कोई फर्क नहीं है खास। ठीक है, यस सर। उसकी भी कई वजूहात होती है ना, मतलब जैसे हम अपनी जबान में भी देखें तो कई लफ्ज हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं जिनका तलफ़ुज़ एक से ज्यादा होता है। और उसमें जैसे बाज दफा इलाकाई फर्क किया जाता है कि एक इलाके में उसको हो सकता है उस लफ्ज को जबर से बोला जाता हो, आ, किसी और इलाके में उसको जेर से बोला जाता हो। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोनों ही मुरव्वज हो जाते हैं और दोनों ही सही समझे जाते हैं। कोई ये इस तरह बोल रहे हैं, उस तरह। तो कुछ जगहों पे तो सिर्फ यानी फर्क वो लहजे का या तलफ़ुज़ का रह जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि फर्क से मानी में भी फर्क आ रहा हो। ठीक है जी, और कोई सवाल? हम्म। सर मिसाल के क्लियर तो है। जी क्लियर है, चले अच्छी बात है। एक और एग्जांपल है, जैसे हम अगर कहें कि एक लफ्ज होता है फकीहा। फिक फिक से फिक जो है ना, समझ बूझ के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो फकीहा अगर इस्तेमाल हो काफ की कसरा से तो उसका मानी होते हैं जैसे समझना। और अगर आप काफ की दम्मा से बोले फकूहा, फकूहा के मानी होते हैं समझदार होना। तो दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन आप देख रहे हैं ना कि मानी में फिर भी डिफरेंट है, यानी कोई बात समझना और वैसे समझदार होने में फर्क है ना। तो हो सकता है कि आदमी सर समझदार हो लेकिन कोई बात उसे समझना है सर्टन। जी जी। सर तो अगर आ ई ऊ के फर्क से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि ये मतलब अफेक्टेड हो रहा है, या मतलब कुछ डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि अगर आ है जबर है तो फिर उसका ये अफेक्टेड है, ई है तो फिर वो अफेक्ट हो रहा है बंदा, या ऊ है तो उसकी और भी सूरतें जो हाँ भी नहीं, है ऐसा है इस तरह, यानी हर वजन से एसोसिएटेड कुछ सर्टेन मीनिंग्स हैं। लेकिन वो तादाद में इतने ज्यादा है कि हम उसे अभी डिस्कस कर नहीं सकते, नहीं चूंकि सर उसको जनरली आप थोड़ा बता दें अगर। जी सॉरी, फिर जरा दोहराइएगा सवाल अपना। सर मतलब जैसा भी आपने पहले जहाना की मिसाल दी थी हुज़न की, कि जी अगर जी। हज़ाना है तो फिर वो इफेक्ट कर रहा है, और जी अगर जी। हजीना है तो फिर उस पे इफेक्ट हो रहा है। और फिर आपने दूसरे पे मिसाल दी है, लास्ट जो ऊ की दी है, फकू फकू हूँ शायद। तो जी उसमें जी, आपने पप्पू। बताया कि वो बंदा समझदार है, फकीहा वो खुद समझदार है, और अगर फकीहा है तो वो समझ रहा है।
तो अगर फकाहा होगा मतलब जबर आ गया तो फिर उसकी और मीनिंग चेंज हो रही है, तो थोड़ा जनरली बता दें। हाँ नहीं वो देखें अब, वो फकाहा तो वैसे नहीं है, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं। प्रोबेबिलिटी तो ठीक है इस एतबार से कि वजन तीन है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि एक्चुअली उन तीनों वजनों पे कोई लफ्ज भी मौजूद हो। नॉर्मली यानी मतलब जो जरूरी नहीं है कि अगर कोई वर्ड है उस पे ऊ आ रहा है, जैसे अगर फकूहा है हम्म जो कि खुद समझदार है, तो अगर ऐसी कोई लफ्ज हो जिसपे ऊ का बन रहा हो, कोई ऐसा वर्ड हो, तो उस पे भी हम वही चीज सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये भी वही समझे क्वालिटी उस पे अप्लाई हो रही है ऊ वालों पे। नहीं वैसे जहां तक तो इसकी बात है ना, जो ये पेश वाले लफ्ज हैं, जैसे फकुहा आपने बताया, फाउला वाले, तो फाउला के वजन में तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक मतलब सिमिलर होता है, नहीं जो भी इस वजन पे जितने भी फेल आते हैं तो उनमें कोई क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटी पोजेस करने का मतलब होता है, जैसे समझदार होना, खूबसूरत होना, जी। मालदार होना, सखी होना, इस तरह की जो क्वालिटीज है ना, तो सिफात का बयान होता है उमूमन इस वजन पे। तो वो तो है इस तरह के, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह के सर्टेन मीनिंग्स हर वजन से एसोसिएटेड हैं। मतलब जैसे फीलिंग्स या इमोशंस के बयान के लिए फ़ाइला यूज होता है ज्यादा। मतलब समझ, जैसे वो था गमगीन होना, खुश होना, अ, उदास होना, इसी तरह की जो फीलिंग्स से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो फ़ाइला पे आती हैं नॉर्मली। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें तादाद में इतनी ज्यादा है, मतलब वो जो मानी है, कि उनको इस लेवल पे आप सीख नहीं सकते, वो चीज एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो इस लेवल पे तो सर आपको ये उसको याद ही फाकूहा करना लफ्ज है होगा, या वरना वो बहुत फाहुमा लफ्ज पेचीदा है? हो जाता है जी। ये फाकूहा लफ्ज है या फाहुमा लफ्ज है? नहीं नहीं, फकुहा ये फिक वाला लफ्ज है बेसिकली, ये जो फिक फिक नहीं बोल, वाला, राइट हाँ सर। यानी ये लफ्ज है। और जो पहले आपने बोला वो फाही फाही फकीहा जी जी, यानी या फाही? फकु एक है, फकुहा ये लफ्ज आ गया। जी जी। हाँ ये फकुहा, यफकुहु, एक इसका जैसे ये पैटर्न बनता है, या मैंने तो और खैर एक माजी बताया फकीहा था, एक समझना। फकुहा और एक फकीहा जी। फकीहा अगर राइट होगा तो सर। समझना, और फकुहा समझदार हो। राइट सर। ठीक है। चले बहरहाल, शुरू में तो यही है कि ये वाले अफ़ाल अब जब आएंगे तो आप हर लफ्ज का तलफ़ुज़ नया, जब कोई लफ्ज पढ़ेंगे तो सीखेंगे उसका तलफ़ुज़, कि इस लफ्ज को हम कैसे बोलते हैं अरबी में, और एक से ज्यादा अगर तलफ़ुज़ है तो हर तलफ़ुज़ के मानी क्या है ये भी आपको पता होने चाहिए फिर। ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, यानी ये वाली जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक ही लफ्ज दो तलफ़ुज़ हैं उसके, या तीन है और मानी भी डिफरेंट है, ये एग्जांपल्स बहुत रेयर है और गिनी चुनी है। आमतौर पे यही होता है कि एक मादे से किसी एक वजन पे फेल आ रहा होता है, हर वजन पे फेल नहीं आ रहा होता। आमतौर पर जैसे जहाब है, तो बस जहाब लफ्ज है, जहीबा जहूबा नहीं है कोई भी लफ्ज। या दराबा है तो दराबा ही यूज होता है, दरूबा या दरीबा पे कोई लफ्ज। ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल्स कम है तादाद में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना हो ना कि जैसे बाज दफा हम, ये भी होता है कि ये चीजें पढ़ते हैं तो कई लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी भी मादे को हर वजन पे बना सकते हैं। तो वो ये जैसे समझ रहे होते हैं कि इससे लफ्ज फाउला पे भी आएगा, फ़ईला पे भी आएगा, फ़आला पे भी आएगा। तो अगर तो यूं होने लगे तो फिर तो वो कह भी बहुत ज्यादा हो जाए ना वैसे भी, तो हर वजन नहीं होता यूटिलाइज। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है, बस अब आगे चलते हैं फिर। जो आखिरी बात है जो मैं यहाँ कर रहा था कि इनका माजी और मुजारे के कॉम्बिनेशंस कई तरह के बनते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया ना कि जरूरी नहीं है कि अगर माजी में एक सर्टेन हरकत है आइन कलेमे पे तो मुजारे पे भी वही हो, डिफरेंट भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम देखें तो फ़ाला का मुजारे क्या हो सकता है, यफ़अलु हो सकता है, जैसे ज़हब यज़हबु या फ़तह यफ़तहु। फ़ाला का मुजारे यफ़इलु हो सकता है, जैसे वो था दरब यदरिबु या गसल यगसिलु। और फ़ाला का मुजारे यफ़उलु भी हो सकता है, जैसे नसर यंसुरु, कतब यक्तुब। ठीक है। तो इसका मतलब है जो फ़ाला है माजी में उसका मुजारे तो तीनों वजनों पे आ रहा है ना, यफ़अलु, यफ़इलु या यफ़उलु, उसकी
पेयरिंग तीनों के साथ ही है। अच्छा, फ़ईला जो है, समिया जैसे आपने पढ़ा, ये शरीबा, इसका मुजारे किस वजन पे आ रहा होता है? समिया का मुजारे हम क्या बोलते हैं? फईला। समिया का सामिया का मुजारे मुजारे बताइए। यस, यस्मा। यस्माउ यस्माउ, यस, यस्माउ, हाँ यस्माउ। अलीमा यालमु, शरीबा यशरबु। तो मुजारे में हम कौन सा वजन बोल रहे हैं? ये पहला यफअलु वाला ना। तो फ़ईला के वजन पे जो भी माजी आएगा, मुजारे यफअलु भी आएगा। इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ऐसा फ़ईला पे कोई फेल आपको नहीं मिलेगा जिसका मुजारे यफइलु या यफउलु आ रहा हो। ठीक है। तो फ़ाला में तो मुजारे में तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीन ग्रुप्स बन जाते हैं ना, फ़ाला यफ़अलु, फ़ाला यफ़इलु, फ़ाला यफ़उलु। लेकिन फ़ईला में एक ही पैटर्न है, फ़ईला यफ़अलु। तो टोटल कितने हो गए अब तक? चार कम्बिनेशंस बन गए। यस सर। और एक पांचवा कम्बिनेशन होता है कि फ़ाउला। फ़ाउला का मुजारे हमेशा यफ़उलु होता है, इसमें सिमिलर होती है हरकत, इसमें डिफरेंट नहीं हो सकती। जैसे फ़क़ूहा था तो उसका मुजारे यफ़क़ुहु होगा, या कबूरा का मुजारे यकबुरु, करूमा यकरूमु, हसूना यहसुनु। इसमें ऐसा कोई फेल आपको नहीं मिलेगा जिसका माजी फ़ाउला हो लेकिन मुजारे यफ़अलु या यफ़इलु आ रहा हो। ठीक है। तो टोटल इसका मतलब है ये पांच कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास जो फेल में यूज होते हैं। जो माजी फ़ाइला पे आता है, मुजारे उसका तीनों में से किसी पे भी आ सकता है। लेकिन फ़ईला वाला जो माजी होगा उसका मुजारे लॉक्ड है, वो सिर्फ यफ़अलु पे यूज होता है। इसी तरह जो फ़ाउला पे आता है माजी, उसका मुजारे सिर्फ यफ़उलु आता है। ये बात क्लियर है? सर फाला का तीनों ऑप्शंस में से किसी में भी आ सकते हैं। जी, किसी में भी आ सकता है। यानी माजी फ़ाइला है तो मुजारे कुछ भी हो सकता है, यफ़अलु, यफ़इलु, किसी भी वजन पे। लेकिन माजी अगर फ़ईला है, उसका मुजारे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है यफ़अलु। और अगर माजी फ़ाउला है, से कॉम्बिनेशन बने हैं। टोटल पांच बन गए ना। ठीक है। सर ये तीन तो सामने नजर आ रहे हैं ना, ये दो हम्म। कौन से हैं? नहीं, ये देखिए मतलब अगर मैं इसको इधर ही लिखता हूँ, जैसे एक देखिए फ़ाअला जो है, फ़ाअला का तीन प्रोबेबिलिटीज है ना मुजारे में। ये यफ अलू भी हो आलू सकता है। ठीक है। या यफ फिर यफ इलू हो सकता है, और यफ उलू भी या हो सकता है। उल्लू। तीन हो गए, तीन कॉम्बिनेशन हो गए ना। फ़ाअला यफ़अलु, फ़ाअला यफ़इलु, फ़ाअला यफ़उलु। ठीक है। ये नंबर नंबर फोर है फ़ईला। इसका एक ही मुजारे पॉसिबल है, यफ़अलु। पीलू। नहीं, यफ फ़ईला का यफ़इलु नहीं होगा कभी भी, फ़ईला का यफ़अलु ही हाँ होगा हमेशा मुजारे। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि फ़ईला जो भी फेल आएगा इस पे, उसकी मुजारे में ऑपोजिट होगी, हरकत जबर होगी मुजारे में। मुजारे में जेर नहीं लगा इसमें। और लास्ट जो है वो फ़ाउला है। फ़ाउला है अगर माजी, तो मुजारे यफ़उलु होता है। इसमें यानी सिमिलर हरकत है दोनों में। ठीक है। यानी ये एक हो गया फ़अल यफ़अलु, दूसरा कॉम्बिनेशन फ़अल यफ़इलु, तीसरा फ़अल यफ़उलु, चौथा है फ़इल यफ़अलु, पांचवा है फ़अल यफ़। ठीक है। ये अब पॉसिबल फाअला कॉम्बिनेशन है। में या फिलू हो सकता है, लेकिन फाइला में या फिलू नहीं हो सकता। जी ऐसा ही है। फ़ाइल में जस्ट एक ही है, फ़इल यफ़अलु। जैसे शारिबा है तो वो उसका यशरबु होगा, यशरिबू नहीं होगा। हाँ, यशरिबु नहीं होता, यशरिबु कोई लफ्ज नहीं है, सामिया का यशरबु। यस्माऊ होगा, जी, यस्मीऊ नहीं होगा। जी ऐसा ही है। राइट सर। ठीक हो गया। यस सर।
چلیں اچھی بات ہے. اب بس یہ جو 5 کمبینیشنز ہیں ان کے ہم نام پڑھ لیتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھیں نا، فعل یفعلو، تو ہر جگہ فاعل لام ہی آتا ہے نا، تو وہ یاد نہیں رہتا، مکس ہو جاتا ہے کہ ابھی یفعلو تھا، ابھی یفعلو تھا. اس لیے ہم جب یہ کمبینیشنز پڑھتے ہیں ثلاثی مجرد کے، تو ہم ہر وزن کے لیے یا ہر کمبینیشن کے لیے ایک فعل کو جیسے یاد کر لیتے ہیں ایک، اور اسی فعل سے ہم اس کمبینیشن کا جیسے تعارف ہم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جیسے میں آپ کو 5 کمبینیشنز ہیں، یہ ہر ایک کا نام بتا دوں گا، ہر ایک کا ایک جو لیڈ آپ کہہ لیں، جو فعل ہے، جو ٹیم لیڈ ہے، وہ بتا دوں گا. وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو اس کے بعد آپ کو ہم دیکھیں گے کہ ڈکشنری اگر آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے، اور اس میں آپ کسی لفظ کا تلفظ کیسے معلوم کریں. صحیح ہو گیا. یہ جو ہم کمبینیشن یا گروپ کا لفظ بول رہے ہیں، تو ماضی اور مضارع کو جب اکٹھا یوز کیا جاتا ہے تو ان کا جو کمبینیشن ہے، اس کے لیے ٹیکنیکلی کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ جی. ماضی اور مضارع یا بہت سارے جو ملتے جلتے لفظوں کا جو ایک پورا گروپ ہوتا ہے، اس گروپ یا ایک کمبینیشن کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں صرف میں؟ سنا ہوگا آپ سے، سب نہیں سنا ہوگا. اس کو بولتے ہیں باب. باب سنا ہوگا، میرا نہیں خیال آپ لوگوں نے یہ لفظ نہ سنا ہو پہلے. یس سر، باب نصرہ، باب فتح، اس طرح. یس. آپ یس بھی بالکل. سنا ہوگا. باب اور اس کی جمع ہوتی ہے ابواب. ٹھیک ہے، تو باب سے مراد ایک گروپ ہوتا ہے، ایک خاص کوئی کمبینیشن ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ثلاثی مجرد ہے 3 حرف کا فعل، اس کے 5 کمبینیشن ہیں، اس کے 5 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، ان ابواب کے اب نام دیکھ لیں. ایک یہ ہے فتح یفتح، اس کو بولتے ہیں باب فتح. یہ وزن کون سے والا ہے؟ فعل یفعلو، وہی والا ہے نا. لیکن اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ فاعل لام ہر جگہ آئے گا تو وہ یاد نہیں رہ پاتا نا، اس لیے ہم اب ڈفرنٹ لفظ یاد کریں گے تاکہ وہ ذہن میں رہیں آپ کے. تو پہلا جو باب ہے وہ ہے باب فتح. تو فتح ماضی اور یفتح اس کا مضارع. دوسرا کمبینیشن ہے ضرب یضرب. تیسرا کمبینیشن ہے نصر ینصر. یہ فعلہ والے تینوں ہو گئے نا تینوں. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. اب اس کے بعد فعیلہ آ گیا، سمع. تو سمع کا تو ایک ہی پاسبلٹی ہے، یسمع. یہ چوتھا کمبینیشن ہے. اور پانچواں ہے کروما یکروم. کلیئر ہے؟ تو اب آپ نے جیسے یہ جو 5 آپ کے سامنے لکھے ہوئے نا افعال، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بیسیکلی. اگر آپ کو یہ یاد ہے تو کسی بھی نئے لفظ کا تلفظ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. تو وہ جو 5 کمبینیشنز ہیں ان کو ہم نے ان 5 افعال میں جیسے آپ کہیں کہ ریپرزینٹ کر دیا کہ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، کرم یکرم. یہ کمبینیشنز بنتے ہیں 3 حرفی فعل کے. اور ان کو ہم شارٹلی، ان کے نام یہی ہیں. پہلے کو ہم کہیں گے باب فتح، پھر باب ضرب، باب نصر، باب سمع، باب کرم. اور جب آپ ڈکشنریز دیکھتے ہیں تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ کسی لفظ کا اگر انہوں نے بتانا ہے تلفظ، اگر کوئی فعل فتح کے پیٹرن کو فالو کرتا ہے تو وہ کیا کریں گے، اس فعل کا روٹ لکھ کے اس کے آگے بریکٹس میں فا لکھ دیتے ہیں. ہر باب کا جو پہلا حرف ہے نا وہ صرف یوز ہوتا ہے. اگر کسی مادے کے آگے بریکٹ میں ضاد لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باب ضربہ سے یوز ہوگا. اگر کسی مادے میں نون لکھا ہے تو وہ باب نصارہ سے یوز ہوگا. سین لکھا ہے تو سمیہ سے یوز کریں گے. کاف لکھا ہے تو کروما سے. ٹھیک. تو اس لیے آپ کو یہ ابواب کے نام یاد ہوں تو یہ بھی فائدہ رہتا ہے کہ نئے فعل کا تلفظ جب آپ لغت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اگر وہ فا لکھ رہا ہے، ضاد لکھ رہا ہے، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کا مطلب ہے کیا، یا اس لفظ کو کیسے میں بولوں گا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ چلیں بس اب آخری بات ہے وہ یہ کہ آپ نے کئی ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہو مختلف کے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہوتے ہیں. میں نے آپ کو 5 بتائے ہیں، چھٹا نہیں بتایا چونکہ وہ ان پریکٹس نہیں ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا. اور اس سے 10 یا 11 لفظ ٹوٹل زبان میں آتے ہیں، وہ سب لفظ متروک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو وہ برابر ہے. یہ 5 ہیں جو پریکٹیکلی آپ کو جن سے واسطہ پڑتا